Let us start with a new type, multiplication by t raised to n. Now if I'll multiply any function with t raised to n, our result will be minus 1 raised to n d by ds raised to n into f of s. Now here you must know derivative of u by v rule, which is v derivative of u minus u derivative of v upon v square. अब t रेस टू n में अगर n की वैल्यू 1 है तो हम लोग एक बार डेरिवेटिव लेंगे, और अगर n की वैल्यू 2 है तो दो बार डेरिवेटिव लेंगे. लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, लाप्लास ऑफ t e रेस टू माइनस 3t इंटू साइन t. Now first of all we will be solving the function. The function over here is sin t, which will be 1 upon s square plus 1. Now this is my f of s. In the next step we will be applying the property of multiplication. Therefore we have the formula Laplace of t raised to n into f of t, that is Laplace of t raised to 1 sin t. यहाँ पे n की जगह 1 है, that is minus 1 raised to 1 d by ds raised to 1 into f of s. f of s अपने पास है 1 upon s square plus 1. Minus as it is, bracket open, we will be applying chain rule, that is u by v rule, v derivative of u minus u derivative of v upon v square. Now in this part derivative of constant will be 0 minus derivative of s square plus 1. Derivative of s square मतलब x raised to n का formula, which is nx raised to n minus 1. तो s square का डेरिवेटिव आ जाएगा 2s अपॉन डिनोमिनेटर माइनस माइनस कैंसिल, एंड देयरफॉर 2s अपॉन s square plus 1 the whole square is our final result. Now in the third step we will be applying first shifting property. Now in this step I am just copying the above result. यहाँ माइनस 3 है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के डेफिनेशन से यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा. Therefore 2 times s plus 3 अपॉन a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एंड प्लस 1 यहाँ पर एज इट इज़ है ब्रैकेट द होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर 2 times s plus 3 अपॉन s square plus 6s plus 10 the whole square. Now in our second problem we have integral 0 to infinity e raised to minus 3t t sin t dt. अब ये MU में 5 मार्क्स के लिए पूछा था. अब ये प्रॉब्लम में t sin t वाला पार्ट लास्ट प्रॉब्लम के जैसे ही सॉल्व होगा, जिसका फाइनल आंसर था 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर. तो यहाँ पे चेंजेस क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी विथ एक्सपोनेंशियल टर्म, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू का डेफिनेशन हम लोग अप्लाई करेंगे. सिंपली वी विल बी सब्सटीट्यूटिंग s इज इक्वल टू 3. तो सेकेंड स्टेप के आंसर में हम लोग s की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करेंगे. तो 2 times 3 upon 3 square plus 1 the whole square, which will be equal to 6 by 100, and we will be getting our final answer as 3 by 50. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक नई प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, विच इज़ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. Here we are already familiar with this definition. Laplace of f of t is f of s. अब यहाँ भी मैं सेम लिख रहा हूँ. If I'll multiply t with a, our final result will be 1 by a into f of s by a. Now let us start with our next problem. Show that integral 0 to infinity t e raised to minus 60 j naught of 8t dt is equal to 3 by 500, where Laplace of j naught of t is 1 upon under root of s square plus 1. अब ये सम अपने को मुंबई यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के लिए पूछ चुका है. नाउ इन द फर्स्ट स्टेप जो पार्ट मुझे गिवन है उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा. इन द नेक्स्ट स्टेप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो जो ऊपर दिया है वही मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है. अब यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो जे नॉट ऑफ 8t है, तो यहाँ पर 8t अगर मैं लिख रहा हूँ तो फॉर्मूला इज़ 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस बाई ए. जहाँ भी एस है वहाँ पर हम लोग डिवाइड बाई ए कर देंगे.
and therefore 1/8 into 1 upon under root of s square upon 8 का स्क्वायर which will be 64 plus 1. अब नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में रूट वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे तो इट विल बी एस स्क्वायर प्लस 64 अपॉन 64. अब रूट ऑफ 64 8 होता है, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा and therefore we have 1 upon under root of s square plus 64. Now in the third step, अब यहाँ पे t दिख रहा है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन बाय t रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल है. अब यहाँ पे f ऑफ t क्या है? f ऑफ t इज़ j नॉट ऑफ 8t और f ऑफ s क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 64. तो नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस. अब रूट को हटाओगे तो रेज टू पावर हाफ आ जाएगा और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो रेज टू माइनस हाफ आ जाएगा. अब यहाँ x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. माइनस पहले से है, ब्रैकेट ओपन, माइनस एन एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज s स्क्वायर प्लस 64. अब लास्ट स्टेप को वापस से एज इट इज़ लिख रहा हूँ. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. वी हैव 1/2 s स्क्वायर प्लस 64 एज इट इज़, माइनस हाफ माइनस 1 बिकम्स माइनस 3/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 64. तो s स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2s आएगा एंड 64 कांस्टेंट है तो 0. नेक्स्ट स्टेप में हाफ एज इट इज़ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 64 रेज टू 3/2 इंटू 2s. 2 gets cancelled. We have our final answer as s upon s square plus 64 raised to 3/2. अब क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे तो एक पार्ट उसमें अभी भी बचा है विच इज़ पर्टिकुलर वैल्यू. उसमें 0 टू इन्फिनिटी और e रेज टू माइनस 60 है. तो ऊपर जो आंसर आया था उसको मैंने एज इट इज़ लिखा है. यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो e रेज टू माइनस 60 है तो s इज इक्वल टू 6 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. वी हैव आवर फाइनल आंसर एज 3/500.